बहुत अच्छी बात की है साथियों। मैं जोड़ देना चाहूँगा कि जो अम्लीय ज़मीन है, जहाँ पर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, उसमें इन्होंने कहा कि अगर बायोचार को हम ऐड करते हैं तो उससे उसकी पीएच जो है अच्छी होगी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने से उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं ग्राउंड्सवेल में हूँ और ये इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मेला है जो कृषि से संबंधित है, और मेरे साथ हैं एक पीएचडी स्कॉलर, ये रीडिंग यूनिवर्सिटी से हैं, और इस यूनिवर्सिटी में मैं 1988 में आया था कभी, और अचानक मुझको मेला में मिल गई हैं ये, और पीएचडी जो कर रही हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड है कार्बन फार्मिंग के ऊपर, कार्बन एमिशन के ऊपर। आओ इनसे चर्चा करते हैं कि ये क्या पढ़ रही हैं और आजकल इनके डिपार्टमेंट में किस तरह के शोध कार्यक्रम चल रहे हैं। वेल लॉटी हॉकिंस, आई वेरी वेलकम यू ऑन माय चैनल, and thanks so much that you have agreed for having a conversation with me. Could you please introduce to my viewers what are you engaged into here in the research format? So I'm studying at the University of Reading, specifically into carbon sequestration into soils. So how farmers can start sequestering more carbon into their soils to combat the changing climate, to help them become more drought resilient in their farming. I'm also looking at how they can make carbon sequestration products such as biochar on farms, so what technology they can use, what they can make it from, and then how to apply it to soils and the benefits it will have to their crops. Why the need has a reason for regenerating the soil? In the UK, one of the reasons is because we've overused synthetic chemicals. So we've put too much synthetic chemicals into the soil. The natural soil life, like the microbes and fungi, have started to break down. They're not there anymore. So the soil's quote unquote quite dead. So we need to regenerate and put life back into the soil because the plants need it because of the. साथियों, लोटी ने बताया है अभी कि इनके यहाँ काफ़ी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इंग्लैंड में होने लगा था, और जिससे मृदा शक्ति, जो ज़मीन की ताकत है, उसकी गुणवत्ता है, वो ख़राब होने लगी, और उसके चलते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि किस प्रकार से उपजाऊ खेती के लिए अच्छी सेहत वाली ज़मीन होनी चाहिए। सो इन दिस कंटेक्स्ट यू हैव गॉट अ डिपार्टमेंट हियर, और यू आर द वन दैट यू हैव सिलेक्टेड द प्रोजेक्ट फॉर दिस प्रोग्राम। So I chose this project within the School of Geography and Environmental Science, which is part of the Agriculture School at the University of Reading. Okay. You did earlier the master's program Yes, I did. prior to PhD. Yes, I What did. was your master's thesis? It was in molecular biology, and it was looking at how plants would respond to salt and drought stress. And that's when I realized the importance of regenerating the soil. They need the microbes and the fungi and the soil organic matter and the carbon in the soil to help them. किसान साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। भूमि की घटती कार्बनिक मात्रा के चलते ये अत्यधिक आवश्यक है कि हम उसकी मात्रा को बढ़ाएं। हॉकिंस ने अभी बताया कि मास्टर्स के थीसिस में, एमएससी में, इन्होंने देखा कि प्लांट्स जो हैं, पौधे, वो स्ट्रेस में क्यों आते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, बायोलॉजिकली उन पे क्या असर आता है। तो उस संदर्भ में उन से लीड लेते हुए इन्होंने पीएचडी पे ही अपना काम शुरू किया है। सो व्हाट काइंड ऑफ द results so far you have gained in your PhD program? So far, I've seen that farmers are interested in making biochar and sequestering carbon in their soils. And when they do that, their soils hold on to about 5 times more water than not putting the biochar in. And so their plants can withstand long, hot summers. साथियों, हॉकिंस जो है ये बायोचार पे काम कर रही है, इस तरह का साधन है। हॉकिंस, could you please tell to my viewers? Biochar is made from waste wood, so trees that have been cut down for health and safety or woodland management. It's heated to 800 degrees. Heated to 800 degrees. Very hot.
and it's 90% carbon. It's very porous, so it holds onto a lot of water and nutrients, and it's added to the soil as an organic soil amendment. साथियों, कई तरीके से आप बायोचार बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जो लंदन में परिचित है मॉडल। एक ड्रम लिया है उन्होंने, उसके नीचे उन्होंने छेद किए हैं। अब ये लकड़ी के चूरे जो हैं छोटे छोटे, इनको इस ड्रम में भर दिया है। के ऊपर उन्होंने थोड़े से पत्ते रखे हैं ताकि आग जलाने में वो सहायता करें। ये उन्होंने आग जला दी है। ये एक और स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने ताकि ये टाइट करने पे ऊपर से चिमनी जैसी जगह से इसका धुआं निकले और पोल्यूशन कम हो। गर्म होने पे पानी डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ा थोड़ा तापमान कम रहे। और अब इसको उतार दिया है इन्होंने और इसमें ये डाल रहे हैं पानी। और देखिए ये बायोचार जो है ये लकड़ी के चूरों का बनके तैयार हो गया। नीचे आप छेद दे सकते हैं। इसको धो रहे हैं वो ताकि फिर काम आए। भारत में भी इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर का है और आप देख रहे हैं कि खेत में ये छिटक रहे हैं धान की पुआल के ऊपर, और धान की पुआल से ही इन्होंने बनाया है इसको। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ये, और इस तरह से ये अंदर से दिखेगा। ये कंक्रीट का ईंटों से बनाया हुआ एक गुंबद नुमा है और फाइनल प्रोडक्ट ऐसे है। ये देखिए इसकी चनाई कर रहे हैं और उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। ये 7 से 9 फुट ऊंचा होगा और इसमें एक दरवाज़ा रखा गया है आगे जहाँ ईंट लगा रहे हैं भैया, और इसको अब लेप लगा दिया गया है। तो ये जब बनाया गया है तो इसमें जगह जगह छेद किए गए हैं ताकि आवश्यकता होने पर इसको खोला जा सके और अंदर का धुआं बाहर आए। ये देखिए आप पुआल अंदर डाल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक साधन रहेगा बायोचार बनाने का। ऊपर तक भर दिया उन्होंने और इसको अब लेप लगा रहे हैं। ये देखिए इन्होंने आग लगा दी है ऊपर से। बायोचार चाहे किसी भी विधि से बनाएं मगर ऊपर से ढक्कन बंद रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जलाते हैं। ये है जब हल्का नीला धुआं हो जाता है तो ये फिर छिद्र जो है खोल देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये बन रहा है और ये 24 से 36 घंटे में इस तरह से बायोचार जो है ये तैयार हो जाएगा। ये 20 क्विंटल 1 एकड़ में डालने पर काफ़ी लाभ होगा। इसमें कार्बन की मात्रा होगी 77%, नाइट्रोजन 0.45%, फास्फोरस 2.7% और पोटाश 3.9%। ये NPK का बहुत बड़ा साधन है। इसमें और तरह के भी कई तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, कैल्शियम, सोडियम और सिलिकॉन। इस पर मैं सिलिकॉन पे वीडियो करूंगा। जब मैं लंदन में कृषि मेला में गया था तो उन्होंने एक स्टॉल लगाया था कि सिलिकॉन का अगर प्रयोग करते हैं आप तो NPK यूरिया की मात्रा को घटा सकते हैं। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है धान की पुआल को संभालने हेतु और बायोचार बना के खेत में डालने पर आप ले सकते हैं लाभ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करें। उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी जो है काफ़ी देर के लिए खेत में रहता है और उससे उसकी मृदा शक्ति जो है बढ़ती है। यू हैव सीन इन योर एक्सपेरिमेंट्स दैट द गेन इन प्रोडक्शन इज देयर, व्हिच gain in production, and water retention is more. Yes, so the water retention results in an increased yield, so you get a bigger crop, especially in acidic soils, so where the soil pH is very low and it's quite acidic. Adding the biochar increases the crop yield. बहुत अच्छी बात की है साथियों। मैं जोड़ देना चाहूँगा कि जो अम्लीय ज़मीन है जहाँ पर pH वैल्यू 7 से नीचे है, उसमें इन्होंने कहा कि अगर बायोचार को हम ऐड करते हैं तो उससे उसकी पीएच जो है अच्छी होगी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने से उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। वेल, ऑन माय ओन बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स, Lottie, I thank you very much for the time that you have spared for us. Wish you very great success so that you do wonders. I extend you an invitation
if there will be any conference of your area, and I will extend you an invitation to visit our country. Great. Okay, thank you very much. very Thank much. you. Bye-bye.